Welcome to video lecture series on strength of material. This lecture is continuation of analysis of bars with varying cross section. In numerical 9, what is given first we will see. तो इसमें क्या दिया है, अ कंपोजिट रॉड दिया है. तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कंपोजिट का मीनिंग क्या होता है. कंपोजिट का मीनिंग ये होता है कि एक से ज़्यादा मटेरियल से अगर हम कोई बॉडी कंस्ट्रक्ट करते हैं या कोई मेंबर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं कंपोजिट मटेरियल. फॉर एग्जांपल, अगर ये सिर्फ स्टील से बना रहता तो हम इसे कंपोजिट नहीं कहते थे, बट यहाँ पे स्टील और ब्रास दोनों है, इसलिए हमें इसे कंपोजिट कहना पड़ेगा. अब हमारे सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में कंपोजिट मटेरियल कौन सा रहता है, तो कंक्रीट इज एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट मटेरियल. सॉरी, RCC is an example of concrete is also composite material because cement, aggregate and sand is there. But RCC is also composite material because properties of concrete as well as properties of steel are used there, right? So this is known as composite materials. Materials made with more than or a member made with more than two materials, right? Now here a composite material is given which is made up of three parts. Part 1, 2 and 3. Part 1 is made up of steel, second is made up of brass and third one is made up of steel. Also length of member is given. For part 1 it is 1000 mm. For middle one which is made up of brass it is 1250 and for steel it is 750. Along with this diameters are also given. For steel means first part it is 75, for second part it is 50 and also for third part it is 75. So for first and last part both are made up of steel, also having same diameters. This side is fixed. This side is fixed. For example, just like this pane. Okay, this side is fixed because it will not move on another side. And if I am applying a load like this, so that load will be considered as compressive because this is fixed surface. Okay, so a load of 2P is acting on it, right? And due to which it will compress. Okay, क्या निकालना है इन्होंने, क्या बोला है, डिटरमाइन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ P. एक लार्जेस्ट वैल्यू P की निकालना है such that stresses in steel does not exceed 150 megapascal and that of brass does not exceed 75 megapascal. Okay, तो ये दिया है उन्होंने. Hence determine the deformation of bar, take ES 200 GPa and E brass as 100 GPa. तो हम सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं और बाद में हम डिस्कस करते हैं कि हमें क्या कैलकुलेट करना है. सो गिवन, अभी फर्स्ट क्या गिवन है वो लिख लेते हैं. तो L1 गिवन है 1000 mm, L2 1250 mm, L3 750 mm. Simultaneously diameters are given. D1 75 mm, D2 50 mm and D3 again 75 mm. So here can we say that D1 is equals to D3? Yes, we can say it like this because both are of 75 mm and therefore A1 will be equals to A3. Also what is given? Third, modulus of elasticity of steel is given. ES, it is 200 GPa, means 200 into 10 raised to power 3 Newton per mm square. We have discussed this in unit conversion. Okay, if you haven't seen that video, please see that video. Then EB means modulus of elasticity of brass, which is 100 into 10 raised to power 3 Newton per mm square. चलो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी गिवन है. और क्या गिवन है हमें, और हमें गिवन है कि मैक्सिमम इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, राइट? मैक्सिमम यानी सिग्मा दिया है. सिग्मा एस कितना दिया है, 150 MPa, यानी MPa मतलब क्या होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर. और सिग्मा बी कितना गिवन है, सिग्मा बी गिवन है 75 MPa, मीन 75 न्यूटन पर mm स्क्वायर. फाइन. अब इसका मतलब क्या होता है कि 150, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मेंबर है, जैसे ये मेंबर है और इसको जैसे मैं एलोंगेट कर रहा हूँ तो साथ साथ में इसके स्ट्रेसेस बढ़ते जाएंगे और इसकी लिमिट कितनी है, 140 तक इसको कुछ नहीं होगा. जैसे ही 150 हो जाएगा कुछ नहीं होगा, 150 से बढ़ गया तो ये
फेल हो जाएगा, यानी इसकी जो लिमिट है वो है 150। सिमिलरली अगर ये ब्रास से बना है तो उसकी लिमिट कितनी रहेंगी 75, राइट। तो लिमिट्स हमें गिवन है। ओके, तो ये हो गया हमारा गिवन डेटा। अभी हमें क्या निकालना है वो देख लेते हैं। टू फाइंड, हमें कैलकुलेट करना है लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और साथ में हमें कैलकुलेट करना है डिफॉर्मेशन ऑफ बार यानी डेल एल कैलकुलेट करना है। तो ये दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले A1। A1 कितना आएगा, A1 इज इक्वल्स टू A3 बोल सकते हैं हम, राइट। सो A1 इज इक्वल्स टू A3 इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, डायमीटर दिया है ना इसलिए पाई बाय 4 इंटू 75 स्क्वेयर। तो एरिया कितना हो जाएगा ये 4417.86 mm स्क्वेयर। तो A1 और A3 हमें मिल गया। अभी हम निकालेंगे A2। A2 का आएगा पाई बाय 4 इंटू डायमीटर कितना है 50 स्क्वेयर। तो A2 कितना आ जाएगा 1963.5 mm स्क्वेयर। सो हमें A1, A3 और A2 की वैल्यूज मिल गई। इसे हम थोड़ा साइड में ले लेते हैं। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लेंगे सिग्मा एस। सिग्मा एस हमें पता है, सिग्मा एस इज इक्वल्स टू लोड कितना दिया है वहां पे 2p अपॉन एरिया, राइट। p बाय ए, बट p कितना दिया है 2p दिया है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा एरिया। सी आवर स्ट्रेस फॉर्मूला इज p बाय ए एंड इन दिस केस p इज इक्वल्स टू 2p। बस इतना कंसिडर करना है। तो p की जगह पे 2p आ गया। सिग्मा एस कितना है 150 2p और एरिया कितना दिया है 4417.86। ये एरिया क्यों लिया, क्योंकि ये सी का स्टील का एरिया, राइट। इस पे से हमें मिल जाएगा वैल्यू ऑफ p। ये वैल्यू ऑफ p आ जाएगी 331.34 किलो न्यूटन। लेट अस से दिस एज 1। Similarly, we will calculate from sigma b. Sigma b is equals to 2p upon a. Okay, so what is value of sigma b? It is 75. 2p. What about area? Area is 1963.5. From this, we will get p is equals to 73.631 kilonewton. Let us say this as 2. ओके, सो अभी हम इसको थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं। ओके, अभी हमारे पास दो पी है, राइट। एक पी है ये 331 और दूसरा पी है ये 73.631। अब इसमें से कौन सा पी हमने कंसिडर करना चाहिए? जो स्टील से हमने कैलकुलेट किया, ये हमने स्टील से कैलकुलेट किया और ये ब्रास से कैलकुलेट किया। तो इस पे से हमें ये पता चल रहा है कि ब्रास जो है वो कम लोड पे फेल हो रहा है एज कंपेयर टू स्टील। स्टील का फेलियर कितने पे आ रहा है 331 किलो न्यूटन पे, और ब्रास का फेलियर कितने पे आ रहा है 73 किलो न्यूटन पे। लेकिन जब ये कंपोजिट बॉडी रहती है तब हमें इसमें से जो कम रहेगा वो कंसिडर करना चाहिए। क्यों? तो यहाँ पे देखो एक कंपोजिट बॉडी बनाई है, वन इज रबर, दिस वन इज रबर एंड दिस वन इज प्लास्टिक। ओके, सो इंडिविजुअली अगर हम देखेंगे तो रबर जो है वो कम स्ट्रेसेस पे ही फेल हो जाएगा, राइट। इसका जो सिग्मा रहेगा वो कम रहेगा, वेयर एज स्टील का जो सिग्मा रहेगा वो ज्यादा रहेगा। और जब हम इनको दोनों को कंबाइन करेंगे और फिर एलोंगेट करेंगे तो कौन फेल हो जाएगा? ये रबर फेल हो जाएगा क्योंकि इसकी सिग्मा कम है। इसका मतलब ये बॉडी फेल होगी, राइट। इसलिए जब भी आपको लोड कंसिडर करना है तो ये जो दोनों में से जो कम रहेगा वो कंसिडर करना है। तो हम कितना कंसिडर करेंगे P73। तो अभी हम P73 लेके कैलकुलेशंस करेंगे।
P इज इक्वल्स टू 73.631 किलो न्यूटन। ठीक है, तो हमारा पहला जो हमें कैलकुलेट करना था वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अभी हमें कैलकुलेट करना है डेल एल। तो डेल एल कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है डेल एल इज इक्वल्स टू डेल एल वन प्लस डेल एल टू प्लस डेल एल थ्री, विच इज इक्वल्स टू पी एल वन अपॉन ए वन ई वन प्लस पी एल टू अपॉन ए टू ई टू प्लस पी एल थ्री अपॉन ए थ्री ई थ्री, पी एल अपॉन ए। अब P इसमें से कॉमन निकाल लेंगे हम। P कितना है 73.631 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ओके, मुझे ये थोड़ा सा इसको साइड में लेने दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा अभी के लिए इधर ले लेता हूँ। ओके, तो वो शायद से थोड़ा सा विजिबल नहीं है, लेकिन हमारा काम हो चुका है। ओके फाइन। तो अभी L1 कितना दिया है, L1 इज 1000 अपॉन A1 कितना है, A1 इज 4417.86। व्हाट अबाउट E1? सो E1 means it is made up of steel and therefore 200 into 10⁻³ plus. Then what about L2? L2 is given 1250 upon. What about A2? A2 is made up of brass, so 1963.5 into. What about brass? It is 100 into 10⁻³ plus. Next is L3. So what is value of L3? It is 750. So 750 divided by 4417.86 into modulus of elasticity of steel, right? It is made up of steel. So 200 into 10⁻³। इसको आप सॉल्व कीजिए और फिर आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ डेल एल। सो वैल्यू ऑफ डेल एल इज हियर 0.6145 mm. Okay, so now we have got both the values P as well as del L. Hope you have understood this. In case of any question, any query, please comment in the comment box. Thank you.